the meeting. Yes. Uh, Good evening once again to each one of you. I once again welcome to our eminent trainer, expert, CA Nikita Maheshwari ji. Welcome to you, ma'am. And really happy to see this that you are wonderfully presenting your skill in the different field where the technical skill is more important rather than taxation and auditing part. So wonderfully you are covering the Excel sheet. So once again, welcome to you. And all participant is requested to ask your query in this regard the today's session. And we have shared all the presentation downloaded in the link, and recording also have been shared with over the mail in the early today. So anything else you can directly contact to me or in the last. So now once again request to Nikita ji to pick up your session. Thank you, sir. Welcome Thank you. everybody to the fifth and final session held by CASA. So we've had a very good session. Abhi tak hum log ne, we have seen everything, seen a lot of complex formulas, how to make pivot tables and everything. So the last thing which we have kept is analyzing some data and presenting some data, making some attractive data like that. So for that, we'll be using conditional formatting, which is one of our coverage, and otherwise we will be using some restrictions on data which are known as data validations. तो आज ये दोनों coverage रखेंगे. This will be more about our presentation and analyzing data. With that, I have some Excel hacks जो हम लोग discuss कर सकते हैं. If there are any queries from the past sessions, we can take those also. Anything else which you generally use in your day-to-day life and you want to know about that. So if time permits, we can take those also. And we can try to make this an interactive and conclusive session. I've kept the chat box on, so जो भी रहेगा, we'll be keep answering the questions right away. So here what I have is I have some data, sales basically for product A and then for product B. तो मेरे पास दो products हैं जिनका मेरे पास में financial year 1920 and 2021 का data है. This is person wise, these are name of persons and इस type से we have the data. So let's use conditional formatting, how to apply conditional formatting on all these things and see whatever results are there. But what is conditional formatting? You might be wondering. So conditional formatting means formatting on cells based on some condition. तो अभी तक हमने conditional functions पढ़े थे, like if, sum if, where result is based on some conditions. Here there is no separate result, only the formatting of a particular cell is based on a condition. So let's say I have a very simple thing here. मेरा बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट साइड है. यहाँ पे मेरा एसेट्स का टोटल आ रहा है डेबिट एंड क्रेडिट. लेट्स से this is my balance sheet का debit number. For me to have a check कि my debit and credit should always match. There should be no adjustment जिसकी वजह से मेरा debit और credit match नहीं हो रहा. So I'm just taking example over here. पहले same रखते हैं and let's see if they match. Then I should these should be highlighted in a green color. And if they do not match, then these should be highlighted in a red color. तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं. Conditional formatting में they give a lot of things which are automatic, like you don't have to write any rules for those, but some things it allows certain formulas and certain things जिसके basis पे we can write some rules and we can create a custom conditional formatting. So first of all we'll be doing this net यहाँ पे और मैं इसका difference ले आऊँ. So my difference by default will be 0. अब मैं इस पे conditional formatting लगाती हूँ. At the home tab or the home ribbon, you will be seeing the tab of conditional formatting. ये होता भी काफी colorful है. Conditional formatting इसको कहते हैं. It says that easily spot trends and patterns in your data using bars, colors, and icons to visually highlight important values. This can also highlight your checkpoints. This can also highlight certain other things. So let me just do this conditional formatting. अब इन्होंने क्या किया? They have given me highlight cell rules, top bottom rules, some default rules, some default settings इन्होंने पहले से ही दे रखी हैं.
so that if you want to apply it, they are readily available for you. आपको पूरा formula लिखने की जरूरत नहीं है, they are readily available to you. Top bottom rows, they are top 10 bottom 10 इस टाइप से. After they have data bars की we'll come to that. data bars होते हैं, color scales होते हैं, icon sets होते हैं. So right now my purpose is to highlight this cell. जब भी ये equal to है तो this should be highlighted in green color. जब भी इसमें कोई deviation है या ये 0 से बढ़ गया, 0 से कम हो गया, so this should be highlighted in a red color or something. So what I can do is I can do equal to. इसने बोला है format cells that are equal to 0. Here it is saying that this value is 0, तो आपको इस टाइप से इसको format करना है. Light red fill with dark red text. So for us, red generally means something wrong and green means something fine. तो आप इसको highlight करेंगे. They have given 3-4 options. तो you can keep on putting this. Green करना है तो ऐसे करिए, preview में आ जाएगा. If you want to do yellow, वो ऐसे आ जाएगा. Light red fill without any font. See, 0 is in black only. 0 is not coming in red. तो वो भी आप कर सकते हो. And then you have the option of custom font. So if you are not satisfied with these results, if you want to do something different, you can use a custom format. If I open this, तो ये मेरा custom format खुल जाएगा यहाँ पे, wherein I can do anything. I can, let's say, I can select इसका fill, I can select as green, and let's say font में I can select blue. Okay. जब मैं ये करती हूँ, visible थोड़ा कम हो रहा है. एक सेकंड. Fill में let me select this. Okay. When I do this, this color has changed to green and this text is coming as blue. So I can click on OK. अब क्या होगा? This is being conditionally formatted. Let's try कि मैं इसकी value change करती हूँ. Let me remove this. तो क्या हुआ अभी? Conditionally format था, green में था, but now it is coming in a normal color. That means there is some change in your value. If I again do this, वो वापस से green में हो जाएगा and it will give me 0. Any change, even if there is 1 number change, 4 number change, that will change this color to nil, because मैंने conditional formatting लगाई थी. Whenever it is equal to 0, you give me a particular answer. Now let's put it in another way. Whenever it is not equal to 0, you give me this answer. So for that, what I will do is I will make a new rule. Actually क्या है? This equal to तो है, but not equal to नहीं है. So I can go to more rules. More rules में it will create a new formatting rule. Either I can do this, or I can go to conditional formatting and make a new rule. आप new rule बनाओगे, so you will get this particular dialog. So this contains format all cells based on their values that contain something between top or bottom, above average, below average, duplicate values, or use a formula. So in सबकी utility we will be discussing, but right now nothing will help me to determine when the value is not equal to 0. मैं एक रूल लगा सकती हूँ ग्रेटर देन लेस देन का. आई कैन डू दैट, बट मुझे उसमें ग्रेटर देन का एक रूल बनाना पड़ेगा, लेस देन का एक रूल बनाना पड़ेगा, which will be a little longer. So instead of that, what I can do is I can create my own rule. Now it is saying use a formula to determine which cells to format. So I can say that is equal to this cell P2. P2 is not equal to 0. अब equal to 0 तो हमें पता है, इस टाइप से लिखते हैं. How do you write not equal to? Not equal to is written in this particular format. So you make a smaller than greater than sign. When you put them together, that will be equal. That will be not equal to. So this represents my not equal to. अगर मैं ये कर दूंगी, ये equal to हो गया. This is less. This is greater. And if I do this both together, this means not equal to. So I'll just select not equal to 0. I'm affixing this with an is equal to because this is a formula. This is not text. This is a formula. So whenever P2 is not equal to 0, I want it to be in a red format. So मैं इसमें, sorry, I'll go to this format. I'll select this orange sub fill color and number में I'll select this red and I will make it bold. So I want my text to be automatically bold and have this color.
और मैं इस पे ओके प्रेस कर दूंगी. Right now it is equal to 0, so it is not giving me that result. If I make it not equal to 0, you can see my text has been bold. The color is a little bit orange and the text color is red. So automatically, whenever the value is same, it will show me green color. Whenever the value is different, it will show me red color. So visually, to see your data, how things are performing, without having to put any formula, without even looking at the checkpoints, आपको बहुत clearly दिख जाएगा कि there is some difference, there is something wrong, and I need to amend it. Let's say I make it bigger number, -4 किया तो भी it is getting red. So even if it was plus, it was minus, it is going to repeat. Okay. Seema ma'am is saying me to repeat it. Okay. Let's go to conditional formatting एक बार. यहाँ पे it gives me an option to clear rule और manage rules. तो मैंने new rule बना दिया. अब अगर मुझे उसको edit करना है, so I can go to manage rules and I can clear rules also. तो I'll go to this. I will first manage rule और जो ये red वाला है deleting this. Okay. अब मैं इस पे नया rule बना रही हूँ. इसको बनाने के लिए I could not go into highlight cell rules जो इसके automatic हैं because it will only give me equal to. It is not giving me less than greater, not equal to. Less than greater than दे रहा है, not equal to नहीं दे रहा. So conditional formatting allows me to create my own rules. यहाँ पे इसने लिखा हुआ है new rule. Just select this new rule. Then it will ask you what is your rule type. So my rule type, if I look into all these, यहाँ पे मुझे कुछ जुगाड़ करके I will have to make that rule. Instead of that, I can use my own rule and I can do that. So what I'll do is my rule is that this P2 cell should never be equal to 0. तो मैंने क्या किया, is equal to P2, freeze कर देते हैं इनको, P should not be equal to 0. This greater than less than greater than sign together, whenever you put them together, that means not equal to. तो जैसे ही मैंने ये किया, my rule is done. But now I have not told it what format to use. I have just said, okay, this is your rule, this is your condition. But conditional के बाद में formatting क्या करनी है? I'll go to this cell and tell it. So I'll select this cell. I can make it bold. I will make this red color. और fill में जाके I will make this ऐसा, चलो ऐसा color दिखेगा नहीं है ऐसा. Yeah, I'm doing this. So it is giving me a preview also that whenever the condition is met, this will be the format. So if I click OK over here, ये यहाँ पे इस टाइप से formatting बन गई है. Let me correct this. तो green आ जाएगा. So this is how visually you can see कि कोई error है या नहीं है. Now we come about removing. मान लीजिए आपने इसको P2 पे लगाया, but now you want to remove this cell to some other place. आपको ना यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे चाहिए. So if I do that, I simply did इसको यहाँ से कट किया मैंने and मैंने यहाँ से जाके इसको पेस्ट कर दिया. Even if I do that, let me examine whether conditional formatting could equally move between my cells. तो यहाँ पे conditional formatting में जाके you will see manage rules. Manage rules basically will tell you some rule which is in the current section. तो इस particular M8 में तो कोई rule है नहीं. Instead of this current section, I can do this sheet. Oh, sorry. This worksheet. Yes, I can do this worksheet. तो ये पूरी worksheet में wherever there is a rule, ये मेरे को यहाँ पे बता रहा है. So here it is telling me the rule has been applied in the order shown. यहाँ पे तो मेरा या तो ये होगा या तो ये होगा, so it doesn't make a difference. Whenever you have multiple rules which could give multiple formatting, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा order आपके लिए relevant है. Here it is not relevant because it will be either 0 or not equal to 0. So here I can see that पहले मैंने P2 पे लगाया था, but automatically now it is saying that rule applies to Q2. Similarly यहाँ पे भी Q2 हो गया. This is because you remove the cells and you put it somewhere else. तो Excel ने उस चीज को recognize कर लिया and it remove the cells and it put it somewhere else. If you want to edit something, यहाँ पे जाके आप उसको edit कर सकते हो. तो let's say मेरे को format में अब font color blue की जगह एकदम dark green चाहिए. I can do that also. ये मैंने format कर दिया.
और ये यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे ये चेंज भी हो गया. So this is how you can edit some rule जो आपकी गलत रूल लगे, you can edit those, you can delete those and apply new also. You can duplicate these rules to another cell अगर आपको ये भी करना है कि मेरे को इसी सेम रूल को किसी और सेल पे लगाना है. Say for example मुझे क्या चाहिए, not just Q getting highlighted, I want M and N to also be highlighted whenever the value is equal to 0 not equal to 0. तो I'll explain मुझे basically क्या चाहिए. जब भी 0 है तो मैं चाहती हूँ कि ये ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर हो जाए. Okay. I want this to be automatically green color. मान लीजिए इक्वल नहीं है तो I want these to be automatically ऐसे red color. So I want to apply conditional formatting based on this formula. Formula मेरा ये है, but formatting मुझे यहाँ पे चाहिए. So how will I do that? How will I do that? I'll select this cell. I'll go to manage rules. इसको मैं duplicate करूँगी. तो basically क्या हुआ? This formula got duplicated. अभी फॉर्मूला तो सेम है, Q2 is Q2 is not equal to 0, but this still applies to cell Q2. If I change this to cell M2, okay, तो अब आप देखो ये यहाँ पे ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई. If I change this back पे, इसकी फॉर्मेटिंग हट गई because I did not duplicate it right now, but इसकी फॉर्मेटिंग अभी भी है. So what I can do here is I can keep on duplicating rules. Current section में किया है क्योंकि ये rule जो मैंने duplicate किया था वो M पे था, तो that is why it is not showing over here. इसको आप this worksheet कर दीजिए. I will duplicate this again. M के साथ में मुझे N पे भी लगाना है. I'll duplicate this. इसको मुझे M पे लगाना है. Duplicate N पे लगाना है. See, it does not matter ये कौन से order में है, it will not matter. But if you have rules जहाँ पे एक cell पे दो separate rules रख सकते हैं, then you will have to determine the order also. अभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Even then, I am just adjusting it थोड़ा सा visually proper दिखने के लिए. Apply किया, okay. Okay, right. तो अभी क्या हुआ यहाँ पे आप देखोगे if I have a difference over here ये सब red में आ जाता है. But if I have a difference, if I don't have a difference, even though मैंने उसको M2 कर दिया, N2 कर दिया था cell को, it did not apply. Because if I look at my rule, it says that whenever cell value is 0, green color should be applied. But in my case M2 तो मेरा 0 है ही नहीं. मैं तो चाहती हूँ कि किसी और सेल के बेसिस पे मेरा M2 0 हो जाए, ग्रीन हो जाए. So whenever I want that, I cannot use these automated formulas जो यहाँ से मिले थे ना highlight cell. I cannot use that. I will have to edit it. तो मैं conditional formatting manage rules में जाके entire section करके I will edit this rule. अब क्या हुआ है, when cell value is equal to 0, तब ये फॉर्मेटिंग करेगा. Instead of doing cell value, मैं वापस से फॉर्मूला यहाँ पे लगा देती हूँ. $Q$2 is equal to 0. So instead of, आप ये दोनों फॉर्मूलेज में डिफरेंस देखिएगा. Instead of this being cell value is equal to 0, क्योंकि वो cell value पे नहीं डिटरमाइन कर रहा, वो तो किसी और सेल पे डिटरमाइन कर रहा है. So whenever Q2 is equal to 0, ग्रीन हो जाएगा. अभी मैंने M पे किया, N पे नहीं किया. Let me put apply. Now you can see M तो ठीक हो गया because it is depending upon this value and this value is 0, but N अभी भी नहीं हुआ. So I will make the same editing rules. I'll go to edit rule. I can put any rule यहाँ पे. I'm selecting formula is equal to Q $2. एक second. $2 is equal to 0. तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया. Let me apply this. Let me apply this rule. और वो चेंज आ गया. Okay. So now my rules are perfect. जैसे ही एरर है वो रेड हो जाएगा, जैसे एरर नहीं है वो प्रॉपर आ जाएगा.
this was about my putting rules based on some other cell and based on its own value. So whatever we have discussed, I will quickly recap. सबसे पहले मुझे इस पे एक रूल लगाना था that whenever it is equal to 0, I want the cell color to be green. So I'll go to conditional formatting. Automatic इसका एक रूल बना हुआ है highlight cell rules. तो मैं equal to वाला select करूंगी. I can give it any color that I want. यहाँ पे I wanted green, तो मैंने इसको ये रूल दे दिया. If I want to give a custom format, I can select any format. मैं इसकी font style भी select कर सकती हूँ. I can do that. Let me cancel it because मुझे rule बना हुआ है. Now if I want this to not be equal to 0, तो ये red हो जाए. Just in this case. In that case, यहाँ पे highlight cell rules में ये option नहीं है, not equal to का. So I'll go to new rule. My new rule will be based on a formula. If you want, you can explore these. Yes, you can put different rules for the same cell also. Yes, so you can put these, you can explore these, but यहाँ पे cell value is not equal to नहीं आ रहा है, या आ गया not equal to. So you can do that also, or you can make your own formula also. तो I prefer to make my own formula. मैंने यहाँ पे formula बनाया, format set किया, मान लीजिए ये color कर दिया, okay, और मैं इसको okay कर देती हूँ. So that will also work. ये मेरा based on a cell value की जगह खुद के formula से I could make this. Now coming to this cell, this particularly depends on some other cell. तो इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, manage rules करके either you can create a rule or you can copy a rule. मैंने इसको duplicate कर दिया था and I just gave it the cell order कि मुझको जब भी ये कोई और सेल पे डिपेंड कर रहा है तो मुझे फॉर्मेटिंग इस पे लगानी है. सो यू कैन पुट रूल्स, डिफरेंट रूल्स फॉर सेम सेल डिपेंडिंग अपॉन सेम सेल, ये भी आप कर सकते हो. So this is how I applied my conditional formatting for a very simple small case. A few caution points in case of conditional formatting. Use it only for small data. If you use it for big data, your Excel will not work because conditional formatting eats a lot of space. So conditional formatting karte you will not be able to maneuver through your Excel very easily. क्या होता है, कभी कभी हमें duplicates find करने होते हैं and say I want to find duplicates in this. सारे duplicate है actually यहाँ पे. ये मैं एक बार just A कर रही हूँ उसको. मान लीजिए मैंने ये A कर दिया. I'm just putting these numbers so that हम लोगों को एक example मिल जाए. Now what if I can do this? I can select all this and I want to see what is the duplicates available. So conditional formatting में highlight cells में you have an option to highlight duplicate values. I'll just select this. Automatically वो करेगा उसको highlight duplicate. अब चाहो तो आप unique को भी highlight कर सकते हो. Let me do duplicate अभी and let me select OK. तो इसने क्या किया? It has highlighted all the duplicate values here. If you want to filter it, आप उस पे filter भी लगा सकते हो and you can check this also कि कौन से duplicates हैं. But in this case, if you have a lot of items, Excel बहुत poor work करेगा, slow हो जाएगा and कभी-कभी तो filter ही open नहीं हो पाता. So this is not recommended when you want to do data analysis on a very big set. When you have smaller data and when you just want it to be presented nicely, तब आपको इसको करना चाहिए. Let me मैं नाम अपने सारे वापस से लेके आ गए. So this is how you can do conditional formatting for duplicates also, but then don't do it for entire range. After that we have a little small problem over here. ये data मेरा एक, yeah, great question. In case of removing, in case of huge data, अगर आपको duplicates हटाने या आपको एक list चाहिए, तो आप दो चीजें कर सकते हो. So this is my duplicate data. Okay. अभी मेरी जो rows हैं वो यहाँ पे count आ रहा है 50. So there are 50 rows over here. ठीक है. There are two ways which you can do it. One is remove duplicates. ये function होता है Excel का. One is pivot. Pivot में आप क्या करोगे? Just draw a pivot जैसे अपन ने कल बात की थी. I'm
मेकिंग अ पिवट ऑफ दिस, और मैंने पिवट बनाया और मैंने उसको यहाँ पे सेल्स पर्सन को रोज में रख दिया. सो पिवट विल ऑटोमेटिकली ओनली टेक इंडिविजुअल वैल्यूज. ओरिजिनली ये 50 है, बट इफ आई गो हियर 25 है. सो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल वैल्यूज आ गए. आप इसको कॉपी करो, कहीं पे भी पेस्ट कर दो एंड यू हैव योर ओरिजिनल वैल्यूज. पिवट हटा दो उसके बाद में. सो आई जस्ट मेड अ पिवट, वो उससे मेरे को आंसर मिल गया. अदर ऑप्शन इज वेरी नाइस, उसको कहते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स. अगर आपको पिवट नहीं बनाना और इफ यू जस्ट वांट टू वर्क ऑन द पर्टिकुलर सेल, आप सारा डेटा सिलेक्ट करो, go to data, just next to this text to columns ना you will get this small option of removing duplicates. इसने दो blue highlight कर रखे हैं, उसके ऊपर cross कर रखा है. So that means it will remove duplicate rows from your data. Again this works only on a row, it does not work on columns. तो ऐसे ही duplicates नहीं हटेंगे, ऐसे ही duplicates हटेंगे. Let's say आपके पास में duplicates ऐसे थे, in a columnar form, ऐसे आपके पास सारे डुप्लीकेट्स पड़े थे. इन दैट केस पिवट वर्क करता है, या फिर जो अभी मैंने किया ट्रांसपोजिंग, इस डेटा को कॉपी करके आप यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो. ट्रांसपोज करने का तरीका बहुत सिंपल है. जस्ट कॉपी द डेटा, सेलेक्ट द सेल जहां पे आपको उसको ट्रांसपोज करना है, सेलेक्ट वन सेल, गो टू पेस्ट, पेस्ट स्पेशल में जाइए एंड जस्ट सेलेक्ट ट्रांसपोज. As soon as you do that, transpose means basically left to right को right to left, top to bottom कर देगा, top to bottom को left to right कर देगा. So this is how transport basically works. Transpose basically works. तो मैंने ये किया, I got this in a list form, rows में. Now I can just select remove duplicates. So let me do this. I'll go to data. I'll select this remove duplicates. अभी मुझे पूछ रहा है what column, कौन से column पे आपको duplicates हटाने हैं. तो अभी तो मेरे पास एक ही कॉलम है, सो इट विल वर्क वेरी इजीली. दो कॉलम्स में भी क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू जस्ट आफ्टर दिस एग्जांपल. तो इट इज आस्किंग मी वेदर माय डेटा हैज हेडर्स और नॉट. सो माय फर्स्ट कॉलम इज हेडर, तो हाँ मैंने बोल दिया, आई टिक्ड इट. इफ आई अनटिक इट, वो फर्स्ट कॉलम को भी कंसीडर कर लिया. लेट मी टिक इट. सेल्स पर्सन इसने कहा, आई विल डू दिस ओके. 25 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 25 डुप्लीकेट यूनिक वैल्यूज रिमेन. तो आप ये भी कर सकते हो. एंड नाउ आप देखोगे यहीं पे इंस्टेड ऑफ 50 सेल्स 25 आर कमिंग. पहले 50 थे, 25 आर नाउ कमिंग. आई वांट टू एक्सटेंड दिस अ लिटिल फर्दर. इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड 2 कॉलम्स, और अब मुझे इंडिविजुअल चीजें देखनी है. सो थोड़ा सा इसको रेंज में मैंने बड़ा बना लिया. I've made it 100 cells. Now I want to see individual or unique items. So in that case, what I can do is go to select this all data. ये मैंने select किया. I'll go to data. I'll select remove duplicates. अब ये बोलेगा आप कॉलम बताओ कि आपको duplicates कहाँ से हटाने हैं. So now it is very important. Let's say I just want to remove duplicate from salesperson. तो क्या करेगा, दिस विल नॉट लुक इनटू द प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट हैज एनी यूनिक वैल्यू और डुप्लीकेट्स वैल्यू. वो सिर्फ सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंगली सब कुछ हटा देगा. मेरे सेल्स पर्सन ओरिजिनली 25 थे और हर एक सेल्स पर्सन के सामने एक प्रोडक्ट था. तो 25 पीपल हैड ए एंड देन 25 पीपल हैड बी. ये मैंने उसको एक रेंज दिया था. नाउ ओरिजिनली दिस हैज 100 बेसिकली. तो इसमें अगर 25 पीपल ए है, 25 बी है, फिर से 25 ए है, 25 बी है. तो इस टाइप से ये सेल्स आ रहे हैं. नाउ इट विल नॉट लुक इनटू द प्रोडक्ट एट ऑल. ये सिर्फ इसके बेसिस पे मेरे को डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा. सो इट विल रिजल्ट इन 25 लाइन आइटम्स. लेट्स चेक अगर ये सही है. मैंने ये किया तो इसने 75 डुप्लीकेट्स फाइंड कर दिए. 75 duplicates based on the name only. It did not check product. Basically duplicate 75 नहीं थे, 50 थे. एक नाम था और उसके आगे एक प्रोडक्ट था, फिर से वो नाम और उसके आगे दूसरा प्रोडक्ट. So that you cannot say that is a duplicate. That is 2 fields, different fields. So if you untick that product, ये आपके पास result आ जाएगा. It is just 25 cells that remain, 25 names. अब ट्राई करते हैं प्रोडक्ट रखने का. एक मिनट. अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो,
How do we change name and pivot? Okay, we'll come to this question, sir. अभी आप क्या देख रहे हो? आयुष अग्रवाल, this is one person. 4 बार नाम आ रहा है, twice A and twice B. So if I want to see what is the individual value, ये कुछ ऐसा आना चाहिए. आयुष है तो 2 बार, but then because products are different, it should be different, or it should be coming in 2 rows. So now what I'll do is I'll again do remove duplicates. सर फाइंड एंड रिप्लेस कैसे काम कर सकता है? फाइंड एंड रिप्लेस में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी. यू विल हैव टू सेलेक्ट दिस, कंट्रोल एफ वी, आप सॉरी कंट्रोल एच वी कर दिया, रिप्लेस किया, पूरे से रिप्लेस कर देगा उसको, सब कुछ रिप्लेस हो गया. यू कैन डू दैट. आपको स्पेसिफिक सेल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी. फाइंड एंड रिप्लेस काम तो कर जाएगा बट बहुत ही लेंथी हो जाएगा. इससे बेटर तो यू कैन सिंपली सिलेक्ट रिमूव डुप्लीकेट्स. एक्सेल को करने दीजिए ना मेहनत तो सारी. So just select remove duplicates. Here I am selecting the salesperson and the product. तो मैंने कहा कि आप दोनों में इंडिविजुअल हो तो रखिएगा, दोनों में डुप्लीकेट होते तो ही हटाइएगा. So when I do this, okay. अब इसने क्या किया? 50 को हटा दिया, 50 रख दिया. So आयुष अग्रवाल के सामने I am getting 2 things, the product A and product B. This is how everything is coming now. So it is really depending upon you कि आपको इसको weightage देना है या नहीं देना. In case you don't want to give second column any weightage, just select the first column, उसमें untick कर देना second को. If you want to give it some weightage, उसको tick कर दीजिएगा. So this is how you do remove duplicates. Pivot में नाम change करने का किसी ने पूछा था, यही ले लेते हैं अपना. इसी का एक pivot draw कर लेती हूँ मैं. आप insert में जाके pivot कर सकते हो और you can use a shortcut NV new worksheet में. Okay. Okay, great. हाँ, उसके लिए you can sir, definitely. I thought you were saying for removing duplicates. Yeah. So if I do this और मैंने ये यहाँ पे किया, अब मेरे को इस चीज का नाम चेंज करना है. I hope you are saying कि मुझे इसका नाम कैसे चेंज करना है, तो मैंने इसका नाम अमाउंट कर दिया. यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो. Some cases में Excel does not allow, तो वो अपने आप से उस पर प्रॉम्प्ट देता है, अदरवाइज वो करने देता है. आप टेक्स्ट में कोई नाम चेंज नहीं कर सकते हो. लेट्स से मुझे इसको भावेश, सॉरी यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो, सॉरी आयुष करना है. यू कैन डू दिस. यू कैन नॉट चेंज एनी अमाउंट. अमाउंट्स चेंज नहीं होंगे, अदरवाइज चेंज हो जाएगा. फाइंड एंड रिप्लेस भी बहुत इजीली काम कर जाएगा. तो लेट्स से मुझे इसको कॉपी कर दिया, ये मुझे चाहिए था, तो आई एम जस्ट डूइंग दिस. फाइंड करो, रिप्लेस करो विद अमाउंट, ये कर दिया, एंड इट विल रिप्लेस ऑल द थिंग्स इन द शीट. So that is also something you can do. One thing which we did yesterday was a little lengthy. जो एक और ऑप्शन है, you can go to this, you can select format, sorry, you can click over here and you can select field settings. Field settings में आप नाम जाके चेंज कर सकते हो, although करने की जरूरत नहीं है. आप यहीं पे भी उसका नाम चेंज करोगे वो भी हो जाएगा. तो ये भी आप allow है, ये भी आप कर सकते हो in case of pivot. I hope your doubt is clear, sir. I'm deleting this sheet once. Yeah. Great. So coming back to our data, अभी क्या है? I have this salesperson, whatever this sales they have made in the current year. This is a report which has been extracted from the system. तो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, sometimes tally में भी ऐसा होता है, फॉर्मूला नहीं लगा पाते. मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर का फॉर्मूला लगाना है, बट ये ना लग नहीं रहा. दिस इज नॉट कमिंग इन प्रॉपर्ली, दिस इज एज अ टेक्स्ट. F2 करके एंटर भी कर दूंगी तो भी नहीं होगा. सो व्हाट टू डू इन दैट केस? देयर आर 2-3 ऑप्शंस व्हिच यू कैन डू. आइदर कॉपी सम सेल, उसको यहाँ पे लगा दो एंड देन पुट अ फॉर्मूला, ऐसे कर सकते हो. कॉपिंग सम ब्लैंक सेल जिसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो. वन ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज खत्म कर दो, क्लियर कर दो और अब फॉर्मूला लगाओ तो भी लग जाएगा. दैट इज द सेकेंड ऑप्शन. क्लियरिंग, वी टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे, क्लियर्स एवरीथिंग. इट क्लियर्स योर फॉर्मेटिंग, सॉरी टाइप, नंबर दे रखा है, टेक्स्ट दे रखा है, अकाउंटिंग कह रखा है, टेक्स्ट उसके अंदर का सब कुछ डिलीट कर देता है. सो ऑप्शन 2 इज दिस, क्लियर ऑल कर लो.
थर्ड ऑप्शन विच इज अ लिटिल नाइस ऑप्शन, इसको आप यहाँ से जाके जनरल कर दो और F2 करके एंटर कर दो. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज फॉर्मेट उसका यहाँ से चेंज कर दिया आपने, जनरल कर दिया, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में ये की. तो इफ यू प्रेस दिस इन एनी सेल, उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली जनरल हो जाएगा. इसमें सॉरी कंट्रोल के साथ में शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट ये, दिस की यू कैन फाइंड जस्ट अबव योर टैब. तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और ये कंट्रोल शिफ्ट टी किया, सारे कॉमास हट जाएंगे, कॉमास हट जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, कॉमास आर रिमूव्ड लाइक दिस, और इट कैन बी एडेड इनटू अ जनरल फॉर्मेट just by pressing this control shift and this curly thing जो आपके टैब के ऊपर आती है, या 1 नंबर जो कीपैड पे होता है उसके लेफ्ट में आती है. So again मैं इसको ठीक कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने इसको ठीक कर लिया और F2 करके एंटर कर दिया. दिस इज स्टिल कमिंग इन लेफ्ट, वो उसकी लेफ्ट इंडेक्सिंग हो रखी है. हटा देंगे तो नॉर्मली नंबर की तरह राइट में आ जाएगा. इसको भी हटा देते हैं, ये वापस से जनरल में जा चुका है. इसको करो कॉपी दिस एंड अब तो मैं सब जगह पेस्ट कर ही सकती हूँ. दिस इज हाउ आई कैन गेट माय सीरियल नंबर. अच्छा, वन थिंग विच आई फेस अ प्रॉब्लम इन सीरियल नंबर इज, लेट्स से मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया तो ये रेफरेंस चला जाता है. लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया तो ये सीरियल नंबर गलत हो जाता है. So for that purposes, these are just small hacks which you can use in your working. ऐसा कुछ बहुत great नहीं है, but हाँ time consuming कभी-कभी हो जाते हैं. Is there a shortcut to remove all decimals and put separator in number format? Separator in number format. Separator से मतलब comma हुआ ना आपका? Okay. हाँ, there is. We will come to that. We were just talking about the serial number. तो जब सीरियल नंबर हम ऐसे करते हैं, जनरली इज इक्वल टू दिस प्लस 1 कर लेते हैं, ऐसे स्ट्रेच करते हैं, बट जब भी हम कभी भी कोई रो डिलीट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. सो इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन यूज अ डिफरेंट फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं रो इक्वल टू रो, और आप कोई रेफरेंस में दीजिए, आप इसको क्लोज कर दीजिए. बेसिकली इट विल टेल यू द रो नंबर ऑफ द करेंट सेल, तो वो आप करेंट सेल का रो नंबर बता देगा. तो यहाँ पे ये 7 आ गया. नाउ आई नो कि मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली 4 चाहिए मेरे आंसर में, बिकॉज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 4, तो मुझे वहां पे चाहिए. आई वांट टू रिमूव द फर्स्ट 3, उसका मुझे रो नंबर नहीं चाहिए, मुझे अदरवाइज सीरियल नंबर बाद से शुरू करना है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट डू -3. जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, आई एम पेस्टिंग दिस ओवर हियर. हर बार रो में से 3 माइनस हो रहा है. Even if I insert, ये मेरा चेंज नहीं हो रहा. Even if I delete, ये मेरा तब भी मेंटेन रह रहा है सीरियल नंबर. I don't have that reference error, जो अगर मैं यहाँ डिलीट करती हूँ तो मेरा ये रेफरेंस बन रहा है, that will not be there. So very small simple सा फॉर्मूला है. You can apply this रो करके, और ऊपर के जितने भी आपको नहीं चाहिए, so I don't want 1, 2, 3 to be considered, तो -3 कर दो. This will solve your problem of that reference error, insert, deletion. ये बहुत easily उसको solve कर देगा. Okay, so we've deviated a bit from conditional formatting and we still have one question. I'll solve that and then we'll go to conditional formatting. तो यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि इतने सारे decimals आ रहे हैं which I don't want. So to remove these decimals from the cell itself or to not show these decimals, दो चीजें होती हैं. मेरे सेल की वैल्यू 79.819 है अगर आप फॉर्मूला बार में देखोगे, बट यहाँ पे इफ यू गो हियर इट इज राउंडिंग इट ऑफ बिकॉज मैंने उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट दे रखा है. सो इफ यू टॉक अबाउट हाउ टू चेंज दिस इन द एक्चुअल वैल्यू, तो उसके लिए तो आपको राउंड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सिंपल होता है, इज इक्वल टू राउंड करो, नंबर सिलेक्ट करो और बताओ कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल चाहिए. सो आई डोंट वांट एनी प्लेस ऑफ डेसिमल, मैं इसको 0 कर देती हूँ. सो नाउ इफ आई यहाँ पे मैं रख रही हूँ उसको, दिस सेल से रेफर कर रहा है. इफ आई कॉपी पेस्ट दिस, अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए, दिस हैज बीन चेंज्ड और वो डेसिमल पॉइंट्स हट गए. तो दिस इज वन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि आपको डेसिमल पॉइंट्स अगर अंदर से हटाने, सो वो फॉर्मेट से कभी भी नहीं होगा. उसके लिए आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा या आपको मैन्युअली जा जाके उसमें से डेसिमल हटाना पड़ेगा.
This is what you can do. Otherwise, if you want to remove decimal point and put a separator, shortcut नहीं है. मैंने मैक्रो रिकॉर्ड कर रखा है. मेरे मैक्रो में मैंने ये स्टेप्स रिकॉर्ड किए हैं. बेसिकली मैक्रो में क्या करता है, पहले अकाउंटिंग करता है, 2 डेसिमल्स पे आता है और फिर ये कर देता है, डेसिमल प्लेसेस हटा देता है. सो आई हैव मेड अ मैक्रो ऑफ इट. दैट इज व्हाई आई कैन चेंज इट वेरी क्विकली. जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा एंड आई जस्ट वांट टू डू दिस, तो मैं अपना मैक्रो रन कर देती हूँ बाय शॉर्टकट की और वो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग फॉर्मेट में चला जाता है. इफ यू वांट टू डू दैट, you can either record a macro or you can just select your numbers, go to format. यहाँ पे आप अकाउंटिंग में जाके डेसिमल प्लेसेस को हटा सकते हो, 0 कर सकते हो, -1 नहीं कर सकते. मतलब यू कैन नॉट डू दैट. आपको राउंड अप नहीं हो सकता इसमें. सिंबल में आपको जो भी सिंबल लाना है, कॉमा, सेपरेटर, वो सब आ जाएगा. अदरवाइज तो सर यही तरीका है कि इसको ये करें अकाउंटिंग या ऐसे कर लें. मैक्रो भी रिकॉर्ड कर सकते हो. मैक्रो रिकॉर्डिंग कैन ऑल्सो बी डन. I hope your doubt is clear, sir. Okay. जब तक सर का confirmation आता है, we'll be, yeah, sir has confirmed. Great. So now we'll be moving on to some other conditional formatting which I can do. अब जैसे हमने देखा था यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल्स का हमने कंपैरिजन, बैलेंस शीट का हमने कंपैरिजन किया टोटल्स का, that it should not change, debit should be equal to credit. ये मैंने कर रखा है. Now what I did here was, मैंने इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक सेल में फॉर्मूला डाला और उस फॉर्मूले के बेसिस पे जो वैल्यू आई उसके बेसिस पे मैंने उसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाया. बट व्हाट इफ आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट. आई जस्ट वांट कि एक सेल में मेरा सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाए विदाउट हैविंग एनी थर्ड सेल. से फॉर एग्जांपल, अगर मेरी 9 लाख से सेल्स 5 लाख पे जा रही है, so automatically this should be red or any color that I want to give it, without having to put this subtraction wala thing and then say कि मेरी sales इतना कम हो गई. Now that is why I want this to be done. So in that case what you can do is you can put a conditional formatting, highlight cells greater than. तो अब यहाँ पे greater than में क्या कर रहा है, format cells that are greater than this amount. But मेरे को ये पर्टिकुलर अमाउंट नहीं चाहिए. मेरे को तो चाहिए जब भी ग्रेटर या लेस देन दिस पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट है, तब आई वांट इट टू बी कंडीशनल फॉर्मेट इन अ सेट वे. इन दैट केस दिस पर्टिकुलर ग्रेटर देन विल नॉट वर्क फॉर मी. ये वर्क करता है जब मेरे को देखना होता है कि मान लेते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, मान लेते हैं मेरी सेल्स जहां पे भी ग्रेटर देन 10 लाख है, आई वांट इट टू बी हाईलाइटेड. तो हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन 10 lakhs. ये मैंने किया and I'm filling it with green. You are seeing that I have selected multiple cells एक साथ में and I have put a conditional formatting. Excel ये भी कर सकता है, select any number of cells, वो खुद से conditional formatting लगाएगा and it will put it on the respective cell. ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और पे डिपेंड करेगा. तो you can select multiple cells also. जैसे ही मैंने greater than 10 lakhs किया, ओके कर दिया, नाउ दीज वैल्यूज हैव बीन हाइलाइटेड. इसको अगर मैं चेंज कर लेती हूँ तो ये भी कंडीशनली फॉर्मेट हो चुका है. अच्छा, लेस देन में यू कैन अगेन पुट अ रूल कि वो रेड हो जाए तो वो भी हो जाएगा. सो दिस इज हाउ ग्रेटर देन वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है whenever you want to see that what salesman has met the target या what expense is going above a certain limit. If I talk about TV scrutiny, आपको नहीं देखनी वो वैल्यूज जो आपके 1 लाख रुपए से कम की है या आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा वाली वैल्यूज देखती है. इन दैट केस यू कैन पुट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन 1 लाख. बी श्योर कि आपके लाइन आइटम्स बहुत ज्यादा नहीं हो, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा. पुट अ कंडीशन, वर्क तो करेगा मतलब एक्सेल स्लो हो जाएगा. पुट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग देयर एंड देन यू कैन जस्ट फोकस ऑन दीज सेल्स कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है, ये तो बहुत छोटे अमाउंट है, दीज आर नॉट रेलेवेंट. आपको ऐसा करना है तो आप ये भी कर सकते हैं. And removing these cells, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, 2 तरीके होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करने के, और आई वुड से 3 होते हैं. मैनेज रूल्स में जाइए, इसको करके डिलीट कर दीजिए, ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, गो टू क्लियर रूल्स एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स. डोंट क्लियर इट फ्रॉम एंटायर शीट, आपके जो भी रूल्स है सब डिलीट हो जाएंगे. क्लियर इट फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स. तो लेट्स से मैं कुछ सेल्स नहीं सिलेक्ट करती, आई एम सिलेक्टिंग फ्रॉम 33 lakhs, मैं ऊपर के नहीं करती. I'm just selecting these
कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ये तो हट गए बट ऊपर वाले नहीं हटे, यहाँ पे भी है। सो बी केयरफुल, जब आप भी सिलेक्टेड सेल्स कर रहे हो तो यू सेलेक्ट योर इंटायर रेंज। एक बार वापस ही कर देती हूँ, बी केयरफुल अबाउट दैट। ये मैंने हटा दिया एंड नाउ दीस सेल्स हैव बीन चेंज्ड। कमिंग टू माय ओरिजिनल प्रॉब्लम, आई होप दिस वाज क्लियर। ग्रेटर देन कैसे काम करेगा, ये जो सारे है ना हाईलाइट सेल्स, ये सब खुद की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। दे डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर वैल्यूज, दे आर नॉट डिपेंडेंट बाय एनी अदर सेल। ये सेल इटसेल्फ की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि अगर ये सेल की वैल्यू इतना बड़ा है तो आ जाए, इतना बड़ा नहीं है तो आ जाए, लाइक दैट इट वर्क्स। सो दिस इज यूजफुल बट नॉट एवरी टाइम, यू मे हैव टू क्रिएट योर ओन रूल्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में एक रूल बना रही हूँ, न्यू रूल करके। मेरे को कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है, वैल्यूज के बेस में भी उसकी वैल्यू पे हो जाएगा, सेल दैट कंटेन में भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई हैव टू यूज अ फॉर्मूला। तो व्हाट आई वांट इज व्हेनेवर माय सेल हैज डिक्रीज्ड, so is equal to this E4 is less, डिक्रीज करें तो E4 is greater than this। जब भी E4 greater than F4 है, that is मेरी सेल्स कम हुई है, I can give it a red format। फिल्म में तो ये करेंगे ना, हाँ सॉरी, I can give it this format। तो यहाँ पे मेरी सेल्स कम हो गई है, आई कैन सी एकदम से कि मेरी सेल्स कम हो चुकी है। अगर मेरी सेल्स बढ़ रही है, कोई एग्जांपल है, देखते हैं। अगर बढ़ने का कोई एग्जांपल नहीं है, आई जस्ट अप्लाई इट ओवर हियर ओनली। मैं मैनेज रूल्स में जा रही हूँ एंड आई एम डुप्लीकेटिंग दिस रूल ओनली। इसमें मैं बस थोड़ा सा एडिटिंग करूंगी, ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दिया और फॉर्मेट चेंज कर दिया। आप वापस से भी क्रिएट कर सकते हो बट शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। फिल कलर मैंने ये कर दिया, ओके। आई हैव सेट दिस फॉर्मेट, अप्लाई करेगा इन पे, ओके। तो अब मान लेते हैं ये 1 ही लाख था, तो इन दैट केस ओके, आप टेस्ट करके देख लेना कि योर फॉर्मूला इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। ग्रेट। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कॉपी दिस टू एवरीथिंग। अब मेरे को कॉपी करने के लिए भी डिस्कस्ड, या तो मैनेज रूल्स में जा जाके आप ये करो, एडिट रूल या डुप्लीकेट रूल कर करके उसको चेंज करते जाओ। बट अगर आप इतने सारे के लिए करोगे, दिस विल बी अ वेरी लेंदी टास्क। 50 के लिए करना है, 500 के लिए भी करना हो सकता है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज पेस्ट स्पेशल डायलॉग। कंट्रोल सी करो, रेंज सेलेक्ट करो, गो टू पेस्ट एंड गो टू पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे यू गेट एन ऑप्शन ऑफ ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, इसको आप सिलेक्ट करो। वैल्यूज पेस्ट, मुझे इसमें से ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ये उसी चीज को पेस्ट कर रहा है। ये वैल्यूज भी पेस्ट कर रहा है मेरी। मर्जिंग में तो नहीं हुआ बट मैंने अगर फॉर्मेट्स पेस्ट कर दिया तो हो गया। So merging में I think it was pasting the values also, that was a problem. So what I did is instead of merging conditional formatting, मैंने paste special जाके simply इसके formats paste कर दिए। फॉर्मेट पेस्ट किया, ओके कर दिया। अब जहां पे भी मेरी सेल्स हायर है, 8000 से 92 लाख पे चली गई, सो दिस इंक्रीज्ड। जहां पे भी मेरी सेल्स कम है, 10,000 से 5,000 हो गई, दिस इज शोइंग इन रेड। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉपी पेस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डुप्लीकेटिंग इट। आप ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ में करना है, हाँ ठीक है, इफ में भी कर सकते हैं, बट इफ में कैसे सर करेंगे हम इसको?
इफ में तो मेरी वैल्यू आती है सर, इफ अगर करेंगे, इफ इनसाइड इफ, सर इफ इनसाइड इफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मिक्स नहीं करते, उसको एक बार लेते हैं। आई एम जस्ट नोटिंग योर क्वेश्चन, उसको लास्ट में लेंगे। आई गो टू मैनेज रूल्स, यहाँ पे मैं मैनेज रूल्स में देखती जाऊंगी। ये देखो ये एक नया रूल बन गया है, यहाँ पे मैंने बनाया E5 से F5, E5 is smaller than F5, तो ये applies to all this करता है, so it is applying to all the cells and there is no dollar over here, तो ये dynamically move कर रहा है, जिस सेल पे है उसी corresponding सेल को देख रहा है। so when you copy paste this ऐसे करके, that will change। इसको मैं अगर कुछ कर देती हूँ तो ये रिस्पेक्टिव ही चेंज होगा, और else nothing will change। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बनाने के, फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। ये जो तरीका है अप्लाइज टू वाला, दिस कैन आल्सो बी अ वे, बट देन अप्लाइज टू में ये चीज करने के लिए यू विल नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस हार्ड वे कि कहाँ कहाँ अप्लाई होना चाहिए, मेरे कौन से डॉलर्स लगने चाहिए, जस्ट पुट इट इन वन सेल एंड फॉर्मेट पेस्ट इट। जब आपने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके फॉर्मेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो दिस वाज वन वे कि मैं यहाँ पे इसको देख सकती हूँ, वट एवर देयर इज अ गुड पोजिशन और अ बैड पोजिशन, वो मेरे को ऑन द फेस ही दिख जाएगा। नाउ कंसिडरिंग ये कोविड पीरियड था, 20% तो रिडक्शन होना रीजनेबल है एंड ऑल दिस थिंग्स। मान लीजिए आपका एनालिसिस ऐसे होना है कि wherever there is a 20% reduction, more than a 20% reduction in sales, then only you want this to be highlighted as red. Otherwise, you don't want it to be highlighted as red. So in that case, what I will do is I'll go to manage rules. ये सिंगल वाला रूल अब हम डिलीट कर सकते हैं, हमने एक बड़ा रूल बना लिया है which works for this entire range. इसको मैं 4 सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस वर्कशीट में सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो नाउ आई विल जस्ट एडिट दिस फॉर्मूला। सो इंस्टेड ऑफ E5 बीइंग लेस देन F5, ये तो ऑलरेडी ग्रीन है, दैट्स फाइन। इस पे एडिट करते हैं, E5 इज ग्रेटर देन 120%। तो जब भी मेरा ओल्डर सेल्स आर ग्रेटर देन करंट सेल्स बाय 120%, तब मेरा ये रेड हो जाए, दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब अगर देखें अपन, यहाँ पे आप देखिए आयुषी जैन के केस में 75 lakhs था, अब 67 lakhs है। देयर इज नो फॉर्मेटिंग बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 20%। इसका अगर मैं 120 करती हूँ, या आप 20% ऐड भी कर सकते थे, दैट कम्स टू 80 lakhs। तो सिंस ये 20% से ज्यादा का डिविएशन नहीं है आयुषी जैन में, भावेश गोयल में, in that case this is not being conditionally formatted to this red cell. So this also can be done। अगर आपको कोई फॉर्मूला में कंडीशन इस टाइप की देनी है, you don't have to make a separate calculation, आप उस फॉर्मूला को ही उतना एडिट कर सकते हैं। So this is also how to apply these typical formulas in the conditional formatting only, ताकि आपको अलग अलग कॉलम रोज इंसर्ट करके उस पर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। Now what I'll do is I'll remove this, or let me copy this। मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। Now I want to compare this data. I want to say कि सबसे ज्यादा सेल्स किसकी हुई है या टॉप 5 कौन है। तो I'll go to conditional formatting, यहाँ पे मेरे टॉप और बॉटम रोज आते हैं। So I want to see who are the top 10 items। इस पे I will click and I want this to be green। green मतलब सेल्स अच्छी है। I'll just select this, okay। So here it is telling me that the top 5 people are ये। I change this, let's say I change this to छोटा सा amount, तो अब कुछ और सेल सेलेक्ट हो गया। So this is how top 5 और bottom 5 और top 10 bottom 10 can work। बॉटम रूल्स में जाइए, बॉटम 10 आइटम्स पे कर दीजिए रेड। तो आई नो माई अंडर परफॉर्मर्स, ये उन्नत, श्वेता, ये सब अंडर परफॉर्मर्स हो गए, ये सब मेरे ओवर परफॉर्मर्स हो गए। इस टाइप से आई कैन सी हु इज परफॉर्मिंग गुड एंड बैड, एंड दिस लुक्स आल्सो वेरी नाइस। सम मोर थिंग्स इफ आई वांट टू से कि डेटा बार्स बहुत यूज होते हैं इसमें। से फॉर एग्जांपल आपका बार ग्राफ होता है, सो हाउ मच सेल समबडी इज मेकिंग,
और आउट ऑफ द टोटल सेल्स किसका परसेंटेज कितना है. सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू डेटा बार्स. आपका डेटा पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज एक्सेल क्या करेगा, पूरे का टोटल करेगा और फिर रिस्पेक्टिव का परसेंटेज निकाल देगा. फॉर एग्जाम्पल 9 लाख दिस इज एंड दिस इज 25 करोड़. तो इसका ये परसेंटेज एक्सेल बैकएंड पे निकालेगा और उसको उतना सा शेडिंग दे देगा कि इतना सेल्स हुआ है. I just select this, go to conditional formatting, data bars. मैं इसको ब्लू कर देती हूँ. और भी बहुत टाइप के होते हैं इसमें डेटा बार्स में. आप उसको सॉलिड कलर से कर सकते हो, आप उसको शेडिंग से कर सकते हो. शेडिंग भी कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू लाइक. तो उसको येलो कर देते हैं. चलिए, सो दिस पर्सन, ओके मेरा ही नाम है क्या, यहाँ पे ले लेते हैं. दिस पर्सन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द सेल्स. तो उसका जो बार है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू दिस पर्सन, दिस पर्सन, दिस पर्सन. यहाँ पे तो बार्स दिख भी नहीं रहे बिकॉज दे आर दैट स्मॉल. सो इवन दिस कैन हेल्प यू टू सी कि किसका कितना सेल्स हो रहा है, किसका कितना. सॉरी सर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. तो इससे मेरे को पता चल सकता है कि किसका कितना सेल्स है, कितना सेल्स नहीं है, क्या रेशो है. उस अकॉर्डिंगली आई कैन गेट टू नो. So this is also how you. Sir, I'm not seeing this busy thing. Excel में cell. I'm not sure, sir, about the question. Yeah. I'm not seen that error, sir. मैंने कभी भी नहीं देखा ये error को. So I cannot comment on this. Probably will have to search. आप एक बार Google करके देख लीजिएगा because I'm not sure कि ये error क्या होता है. Yeah. So I'll just select this एक बार conditional formatting करके. There are other things also. आप color scales दे सकते हो किसी चीज को. Say for example, ऐसे मैंने color scales दे दिया तो ये वाला था, कितना red में है, कितना ये है. It will also tell color scales accordingly. Depends on the data किस type की formatting आपको करनी है, but then it can also be done. This was about my conditional formatting. इसमें आप you can play around various formulas. यहाँ पे आप अपने आप से खुद से फॉर्मूलाज भी लगा सकते हो. एक होता है अपना आइकन सेट्स. तो आइकन सेट्स में व्हाट वी कैन डू इज, इसको एक बार हटाते हैं और इसके रूल्स भी हटा देते हैं. नाउ व्हाट आई वांट इज, ये मैंने डिफरेंस निकाल दिया. इस डिफरेंस पे मुझे आइकन सेट्स लगाने हैं. तो इफ आई वांट दिस, ये मेरे को सिंपली बता देगा. इसमें रूल कुछ अलग लगता है. इसने मुझे बताया कि ये एवरेज से ऊपर है, ये एवरेज से नीचे है. दिस इज हाउ इट इज टेलिंग मी व्हाट इज ऑन एवरेज, व्हाट इज नॉट ऑन एवरेज. सो दिस पर्सन इज ऑन एवरेज. ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं. इस टाइप से इसके फॉर्मूला को एक्चुअली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ये क्या फॉर्मूला लगा रहा है. यहाँ पे इस टाइप से आता है आइकन सेट. जब भी वैल्यू आपकी 67 से ऊपर है या ग्रेटर है परसेंट से, तो ये इस टाइप से आ जाएगा. अदरवाइज ये येलो में आ जाएगा, अदरवाइज ये रेड में आ जाएगा. सो इन केस आपकी सेल्स बढ़ रही है, कम हो रही है, यू विल हैव टू पुट अ बिट ऑफ फॉर्मूला हियर. जब आप ऐसे फॉर्मूलाज लगाएंगे तो आप आइकन सेट्स भी यूज कर सकते हैं, विच विल गिव यू डॉट्स एंड थिंग्स कि आपका ये बेटर जा रहा है, कम जा रहा है, कैसे जा रहा है, लाइक दैट. सो आइकन सेट्स कैन ऑल्सो बी यूज. This was about my conditional formatting. If anybody has a doubt about that, just let me know. Sir, I'm not sure about the field error. आप मेरे को डायरेक्ट में भी पूछ रहे हैं, तो I'm not sure about the field error. I'm not seeing such errors. एक बार हमने errors जो discuss किए थे, I think those are the most common errors जो generally working में आते हैं. Busy is not something, field is not something which I've seen ever. हाँ. Maybe I will also have to research किए होते क्या. So if anybody has a doubt about conditional formatting, otherwise I will go to the nesting if somebody asks me about the nesting if thing, so I'll go to that also. Before that, I will go to data validation because that is also quite good and interesting. So data validation, I have not kept any text. Data validation is very simple. Basically, मान लेते हैं
मुझे क्या है, मुझे सेल्स पर्सन का नाम ही एक सेल में, रिस्पेक्टिव सेल में चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से कि यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर सेल I don't want any other field other than the criteria I give. Let's say मुझे यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए सारे नाम की. I want a list of all the names that can be here, which is equal to the salesperson. नहीं सर, डुप्लीकेट एग्जैक्ट देखता है. डुप्लीकेट सिर्फ केस सेंसिटिव नहीं होता, अदरवाइज इट सीज द एग्जैक्ट थिंग. तो नॉट श्योर अगर वो हो पाएगा तो उसमें सर आप क्या कर सकते हो, आप पिवट बना सकते हो. तो पिवट में ना वो ऑटोमेटिकली अरेंज भी हो जाएगा और वैसे भी मिल जाएंगे, बट नहीं, डुप्लीकेट विल नॉट वर्क फॉर दैट. सो हियर लेट्स से आई जस्ट वांट द सेल पर्सन. मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई भी उसके अलावा कुछ नाम लिख दे. So for that I have a very nice tab known as data validation. कोई भी डेटा डालने से पहले Excel will validate it. If it meets the certain criteria, then only Excel will accept it. So I'll go to, since it's data validation, वो data tab में ही मिलेगा अपने को. यहाँ पे yeah, बहुत छोटे छोटे icons है, so even I have to search. You can just select this data validation. If you have 2016 or higher version, you can select here. Okay. हाँ सर, duplicates में तो I think exact values ही हो पाएंगी. Yeah. So here I'm going to this data validation and I'm selecting this. अब यहाँ पे इसने ना मुझे settings दिखा दिया. What do you want? It's asking. Yeah. Here it is asking कि आप allow क्या करोगे. You want any value? You only want a number? आपको decimal चाहिए, list चाहिए, टाइम चाहिए, टेक्स्ट चाहिए या कस्टम चाहिए. कस्टम में यू कैन पुट अ फॉर्मूला. तो मुझे एक बेसिकली लिस्ट अलाउ करनी है. लिस्ट अलाउ करनी है. लेट्स से मुझे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ फॉर्मूला ओवर हियर, लेट्स से मुझे ए बी सी डी प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए थी. तो आई विल डू दिस ए बी सी डी. सिंपल उसको कॉमा से सेपरेट करिए, दैट विल बी द लिस्ट. जस्ट प्रेस ओके. मैंने उसको सेल पर्सन से चेंज कर दिया. अब आप यहाँ पे देखोगे, as soon as I came to this cell, there is this particular button. This drop down has come. अब मैं drop down करूंगी तो ये मेरे को A B C D drops में दे देगा. If I don't, if I want to select, मैं ऐसे करके select कर सकती हूँ. If I try to press E over here, तो ये मेरे को एक restriction दे देगा that the value does not match the data validation restrictions. So whatever value you have kept, it does not match the restrictions and it will not allow me to enter this data. मेरे को उसको change ही करना पड़ेगा. If I do this, वो accept हो जाएगा. You can select this, go here, or you can simply type it also. आप type भी करोगे तो भी चल जाएगा. So this is basically when you want to restrict the entry in a particular cell, तब आप data validation use करते हो. It may work कि आपको किसी को एक लिस्ट देनी है. से फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि मेरे फर्म में पार्टनर्स कौन कौन है. सो नॉट ओनली फॉर एडिंग डेटा, इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ लिस्ट कि आप देख पाओ डायनेमिकली. यू डोंट हैव टू टाइप एनीथिंग. जो भी पार्टनर का नाम है सिंपली उसको सिलेक्ट करो एंड दैट कैन बी डन. दिस इज वन वे ऑफ पुटिंग लिस्ट. लिस्ट में इफ आई गो, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से. लिस्ट में इफ आई गो, इंस्टेड ऑफ दिस सोर्स आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट सम सेल्स. तो जो भी वैल्यू सेल्स में होगी वो यहाँ पे आ जाएगी. से फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अब पर्सन चाहिए. आई गो टू दिस डेटा वैलिडेशन. सोर्स में इंस्टेड ऑफ दिस आई विल जस्ट गो टू यहाँ पे एंड आई विल सिलेक्ट माई पर्सन्स. मैं सेल्स पर्सन वाला सेल नहीं सिलेक्ट करी. आई एम नॉट सिलेक्टिंग C3 बिकॉज दैट विल ऑल्सो कम इन द ड्रॉप डाउन. मैं आयुष अग्रवाल से एकदम एंड तक सिलेक्ट कर रही हूँ. दिस हैज डुप्लीकेट्स. तो अभी मेरी लिस्ट में डुप्लीकेट्स भी आएंगे. You will either have to remove these duplicates कहीं और पे उसको रख के and then you can put this. तो आपके duplicates नहीं होंगे. मैंने OK किया. Now it is giving me a list of all the person जो मेरी उस list में थे. So this is how you can create lists based on formulas, or you can just simply add your text. Go to data validation again. यहाँ पे conditional formatting में list हटा रही हूँ.
and I'm just doing this. तो अब मैं यहाँ पे मेरा simply यहाँ से conditional formatting has been removed and I can add any name, let's say Sachin Tendulkar. मेरे sales के persons में तो नहीं था, but I can add that name. So putting it, removing it can be done very easily. Data validations mean you have a lot of things other than this also. Instead of a list, you can do it a whole number. So a person will not be allowed to put any decimals. You can say a whole number between. So आपको 1 से 100 के बीच में आंसर्स चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो. Instead of between, you can select greater than, less than, all those things also. You can basically restrict the user in putting anything other than the data which you are validating. After that, instead of whole number, you have a decimal places भी डाल सकते हो. List अपन ने discuss किया. Date between two dates, आप वो भी कर सकते हो कि say for the financial year, I don't want a date after the financial year, before the financial year. So you can select that also. Start date, end date को formula में रख के you can link it over here. Between की जगह greater than, not equal to, again all those mathematical operations. You can do text length. टेक्स्ट लेंथ मुझे नहीं चाहिए लेस देन 5 कह देते हैं. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे निकिता टाइप करूंगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 5. सो व्हेनेवर यू हैव अ कोड, यू हैव सम लेक्चर और समथिंग लाइक दैट, तो आप वहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हो. डेटा वैलिडेशन अनलाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग डज नॉट यूज अ लॉट ऑफ सेल स्पेस, तो उससे एक्सेल फाइल हेवी कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. Other than that, you can use custom. Custom में basically you can give it a formula. आप कोई भी formula लगाएंगे तो वो भी एक data validation में आ जाएगा. Custom generally काम नहीं आता because data validation का maximum use अपना list से ही होता है. So whenever you are using this list, you can do that. Clear और करेंगे तो वो सब हट जाएगा. So this is how you can apply or keep applying data validations ताकि आपको कहीं पे भी कुछ चीज restrict करना हो, so you can do that. One more thing which we can do in data validation is, let's say ये जो name persons आ रहे थे, इसमें मैंने यहाँ पे individuals बनाए थे कहीं पे. इन persons को मैं क्या करती हूँ, I can name it in a specific manner. तो instead of giving this particular cell range, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको name दे देती हूँ sales person का. तो whenever I will basically give Excel a formula, or I will basically tell Excel that this is my formula. जब भी मैं is equal to names लिखूंगी या is equal to sales person लिखूंगी तो मेरे पास वो लिस्ट आ जानी चाहिए जो मेरे sales person है. Say for example, I'll go to formula and I'll select name manager for this. Name manager थोड़ा lengthy तरीका होता है, so instead of that you can go to this name box also, और यहाँ पे भी आप उसको change कर सकते हो. So name box में I'm putting sales person. You please remember not to put it like SA1 or SP1 because SP1 तो अपने आप में cell भी होता है. So don't confuse it. आप इसमें सिर्फ text use करो. Numbers अगर आप use करते हो तो ensure करो कि that your text is at least 4 characters long. वरना अगर आपने DOG1 कर लिया तो वो cell का number हो जाता है. So just be very careful when you are naming things. मैंने यहाँ पे sales person उसको name कर दिया. Now whenever I will do this, Excel is recognizing this as a formula. Is equal to के बाद ये दिखा रहा है. डबल क्लिक करो और एंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली इसने वो लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया. Excel has populated this list over here. तो this is something known as named list. ये लिस्ट को आप कहीं पे भी रेप्लिकेट कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो. You can use it in data validation as well. So I'll go here. मैंने वो लिस्ट बनाई थी. I'll go to data validation, list करके is equal to करके sales person, मैंने उसको नाम दे दिया था. सेल पर्सन दिया था, नॉट सेल्स पर्सन, सेल पर्सन. तो यहाँ पे मैं गई, आई वेंट हियर अगेन. यहाँ पे ऑटोमेटिकली इट हैज रिकॉग्नाइज्ड दोज नेम्स क्योंकि उसने वो लिस्ट का नाम देख लिया एंड इट हैज डन दैट. अब आपको कुछ नहीं करना. आपको जब भी कोई सेल पर्सन ऐड होता है आप उसका नाम एक्स मान लीजिए जीनत है, आप उसका नाम यहाँ पे डालिए
आप इस रेंज को अगर अभी देखेंगे तो सेल पर्सन से विक्रम तक ही है. सो इन ऑर्डर टू ऐड दिस व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू फॉर्मूलाज, नेम मैनेजर में जाइए, इट इज शोइंग यू सेल्स पर्सन, इसका फॉर्मूला यहाँ पे है और उसको एडिट कर दीजिए. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन एडिट द फॉर्मूला ऑल्सो आफ्टर पुटिंग अ नेम रेंज. ओके, और ये मैंने क्लोज कर दिया. सो नाउ इफ आई सी हियर इवन जीनत विल बी विजिबल ओवर हियर, लास्ट पे वो भी नाम आ गया. So this is how you can put named range in list. इस list को आप बना सकते हो and you can keep adding data there and you can make your data validation a little more automatic and flexible. I hope this was clear. So this is how a list can be made. I will be sharing this workbook to you, so you can look into the formula once again when they are done. Great. Now somebody asked me about nest if thing. So let me put formula over here. Yeah, somebody is talking with me. Okay, I'll continue. So next if का formula लगाना है तो अपन पहले वाला example लेते हैं. I'm taking little smaller values because it will otherwise take a lot of time. मैंने out of 100 marks है ये, out of 100 marks है, and I want to know which who's passing and who's not passing. 40 वाला criteria जो अपने CA वाला होता है that is there, and to pass you require total of 200. So what I can do is equal to if, दोनों का sum भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, is equal to if this is greater than 100 pass. ये तो मैंने सिंपल पास और फेल का फॉर्मूला बना दिया when I'm looking at the totals. But now what if I want, instead of just doing this pass fail, मुझे दो formulas लगाने हैं. So what I can do is I can put here only, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी. If this is less than 100 fail. मैंने क्या किया, सबसे पहले I checked whether this is less than 100. अगर less than 100 है तो automatically fail हो जाएगा. Say for example this was 40, तो automatically fail हो जाता. So I don't need to go on a second test. So now what I can do is if this is less than 100 तो आप fail करो. अगर ये 100 से ज्यादा है, so I am putting a different if here. Instead of giving it a value of pass, I am doing a different if. तो मैंने यहाँ पे if किया, और if में I discussed कि हमें और या and यूज करना पड़ेगा when I have two conditions like here. तो मैंने किया और this is less than 40, comma this is again less than 40. तो जहां पे भी मेरा less than 40 आ जाएगा तो that person will be failing. तो अगर ये condition true हो गई मेरी तो I want this to be fail. और अगर कोई भी subject less than 40 नहीं है तो ये condition मतलब untrue हो गई, तो then I want it to pass. तो in this case मेरे pass का formula बन चुका है. The marks are greater than 40 in both case and the total is greater than 100. इसको नीचे copy कर देते हैं. अब ये fail आ गया. Although the marks are greater than 100, मेरा ये 30 है इसलिए ये fail हो रहा है. That is one thing is less than 40, इसलिए ये fail हो जाएगा. I hope sir आपका if वाला nesting if वाला clear हो गया doubt. Great. So we have 10 minutes over here. I have some other things or hacks which we can discuss. But if somebody has any doubt जो उनको practically face होता है, I'll try to solve those to my best abilities, to the best of my abilities. So अगर if there's any doubt, you can unmute and ask, or you can put it in the chat box. Or else there's just one more thing which we can do, which will be very nice.
Okay, so I don't think there are any doubts here. Just a second. Yeah. So इस केस में what I'm going to discuss is a small hack which we can do. Ifs and nested if में से ज़्यादा difference नहीं है. Ifs basically 2016 वर्जन से आया है, so probably आपके पास nested if ही option रह जाएगा if you're not using on the back side. Ifs में ये होता है कि अगर आपका IFS में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मान लीजिए हमने फॉर्मूला लगाया था, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने IFS लगाया होता तो मेरे पास में सिर्फ ये फेल देने का ऑप्शन होता, बट आई वुड नॉट हैव द ऑप्शन टू गिव वैल्यू इफ फॉल्स. तो अगर सब कुछ फेल होता जाएगा, आपकी सारी कंडीशंस फेल हो जाएंगी, तो वैल्यू इफ फॉल्स क्या देना, यू विल नॉट हैव दैट ऑप्शन. उसके लिए आपको इफ एरर लगा के वैल्यू इफ फॉल्स देना पड़ेगा. IF नेस्टेड इफ में आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन बचता है कि अगर सारी कंडीशंस फेल हो जाती है, नॉट इवन अ सिंगल कंडीशन पासेस, तो मेरे पास लास्ट में ऑप्शन क्या है, दैट ऑप्शन विल बी देयर इन इफ्स, सॉरी नेस्टेड इफ. बट इफ्स में आपको उसके लिए वो करना पड़ेगा, इफ एरर लगाना पड़ेगा. अगर यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इफ्स, सबसे पहला दिस इज ग्रेटर देन 100, बट मुझे यहाँ पे एंड यूज करना पड़ जाएगा सर, क्योंकि जैसे ही ग्रेटर देन 100 हुआ वो मेरा पास आ जाएगा. तो इस केस में तो काम नहीं करेगा, मुझे एंड या कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा. एक्सेल जनरली मैम ये रिकॉग्नाइज खुद से कर लेता है जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, डॉलर लेना है या अदरवाइज लेना है. आपको बस एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि आप डॉलर खुद से ही मत लो. आई रिमूव द डॉलर साइन बिकॉज मैं चाहती थी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऊपर नीचे प्रॉपरली पेस्ट हो जाए. अगर मैं डॉलर साइन रखती तो भी पेस्ट तो हो जाती, बट आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि वो प्रॉपरली होगी या नहीं होगी, कहीं वो उसी फील्ड पे डिपेंडेंट तो नहीं हो जाए. तो बेसिकली डॉलर साइन का मतलब क्या होता है, अगर मैंने इस पे यहाँ पे डॉलर लगा दिया, इफ आई कॉपी दिस, जनरली क्या होता है, ये अगर मैं कॉपी नॉर्मली ऐसे नीचे करती हूँ तो ये सेल का रेफरेंस चेंज हो जाता है. सेल का रेफरेंस चेंज हो गया यहाँ पे अगर मैंने डॉलर नहीं लगाया. बट इफ आई पुट अ डॉलर इन दैट केस मेरा सॉरी इफ आई पुट अ डॉलर इन दैट केस मेरा डॉलर सॉरी क्या बोलते हैं, सेल चेंज नहीं होगा, सेल विल रिमेन एट द सेम प्लेस. तो इसलिए आई रिमूव द डॉलर बिकॉज मैं चाहती थी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग सब सेल्स पे उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू से लगे, ना कि फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे लगे. दिस इज व्हाई आई रिमूव्ड इट. आई एम नॉट श्योर, बट अगर मैं वो डॉलर रखती भी ना तो भी देयर वुड नॉट हैव बीन एनी इशू. अगर इशू आता तो आई वुड हैव अगेन रिमूव द डॉलर. मुझे थोड़ा सा डाउट था, ऐसा डिड इफ एरर. आई थिंक किसी का म्यूट है, प्लीज अनम्यूट म्यूट योरसेल्फ. I request you to please mute yourself. Just I am checking. Just my staff is Okay, no problem. इफ एरर हमें कैसे यूज करना है, मान लीजिए छोटा सा VLOOKUP लगाते हैं. VLOOKUP हमें पता है यहाँ पे जरीन नाम का कोई भी नहीं था, जरीन यहाँ पे लुक करना है, F4 कर दिया, रेंज फिक्स कर दिया, कॉलम उसी में देखना है. तो देयर इज नो अदर कॉलम जिसमें देखना है, इसी कॉलम में देखना है. तो मैंने कॉमा 1 किया और लास्ट में 0 लगा दिया. तो हियर इट इज कमिंग एज NA क्योंकि इट कुड नॉट फाइंड जरीन. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज अपना पूरा फॉर्मूला बना लीजिए. डोंट डू इफ एरर इन स्टार्टिंग, वो कंफ्यूज करता है. मेक योर फॉर्मूला, जस्ट प्रेस F2. फॉर्मूला के स्टार्टिंग में आप इफ एरर लिख के ब्रैकेट ओपन कर दो. जैसे मैंने इफ एरर किया, सबसे पहले पूछता है वैल्यू. अगर यहाँ पे ये वैल्यू सही आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ एरर कुछ नहीं करेगा. अगर यहाँ पे वैल्यू गलत आती है तो देन इट आस्क व्हाट इज द वैल्यू दैट यू वांट इफ देयर इज एन एरर. सॉरी, yeah, what is the value you want if there is a particular error.
In that case, I will say not found. आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 not found कुछ भी लिख दिया और मैंने इसको क्लोज कर दिया. तो सिंपली क्या काम करेगा, इफ एरर ये ढूंढेगा, ये नहीं मिलता तो यहाँ पे ये दे देगा. That's it. इतना सा सिंपल सा ये चीज होता है. I hope you got it. एक कल किसी का डाउट था मेरे पास में कि ट्रांसपोज हमें डिफरेंट उसमें करना है, कीपिंग द फॉर्मूला, तो वो कैसे होगा. यहाँ पे मैंने क्या किया है, आज पुट अ फॉर्मूला, मैंने डेटा लिया है और मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग E4 से मेरा यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है. सो इफ आई गो हियर, इसका मैंने लिंक इस शीट 4 में दे दिया है. नाउ लेट्स से आई वांट टू ट्रांसपोज इट. ट्रांसपोज मतलब मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे ये इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे ये इस तरीके से चाहिए. यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसपोज तो कर दिया, बट मैंने वैल्यू पेस्ट किया. मैंने वैल्यू पेस्ट इसलिए किया बिकॉज इफ आई डिड नॉट डू दैट, यहाँ पे सारे मेरे फॉर्मूलाज और लिंकिंग हिल जाते. इट वुड हैव गॉन हेवायर. लेट मी ट्राई दिस. इसको कॉपी करके इफ आई ट्रांसपोज इट ओवर हियर, सिंपल ट्रांसपोज किया तो आप देखो सारा रेफरेंस आ चुका है. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज just select this, try to keep it in a different sheet. Same sheet में मत रखिएगा, put it in a different sheet. छोटा सा एक हैक है इसमें. आप क्या कर सकते हो, जो आपका एक्सक्लेमेशन आ रहा है, एक्सक्लेमेशन के आगे आप डॉलर लगा दो. How will you do that? Just go to control, find and replace, Control H, select this exclamation और replace this exclamation with exclamation and dollar. मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, मैं मेरे सेल रेफरेंसिंग को फ्रीज कर रही हूँ. आई एम फ्रीजिंग माई सेल रेफरेंसिंग सो दैट इफ आई कॉपी दिस फॉर्मूला एनीवेयर, वो सेल रेफरेंसिंग चेंज ना हो. तो मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया. इसको आप ऐसे रिप्लेस कर दो. वैल्यू में देयर विल बी नो चेंज, इट विल जस्ट बी अ डॉलर जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ओके, इन केस ऑफ नंबर्स आई कांट डू दैट. मैं वो नंबर्स के केस में नहीं कर पा रही हूँ. सो आई विल अगेन डू स्मॉल सी थिंग. ई की जगह मैं ई डॉलर कर देती हूँ. लेकिन हाँ, बी श्योर कि आपके नेम में ई नहीं आ रहा हो, अदरवाइज वो यहाँ पे भी नेम में चेंज हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ पुटिंग ओनली ई में ई डॉलर ई करके डॉलर ऐसे चेंज करती हूँ. सो एक्सेल विल फाइंड दिस एंड रिप्लेस इट विद दिस. तो मुझे नंबर और टेक्स्ट दोनों के पीछे डॉलर चाहिए थे, तो मैंने इस तरीके से रिप्लेस कर दिया. सिमिलरली यहाँ पे ई की जगह मैं एफ करूंगी, मैंने यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया. नाउ मैंने क्या किया, आई जस्ट फ्रीज द सेल्स, आई फ्रीज द रेफरेंसिंग ऑफ ईच सेल. अब आप इसको कहीं पे भी कॉपी करके ट्रांसपोज करिए. द पर्टिकुलर सेल, क्योंकि आपने उसको फ्रीज कर दिया, दैट विल नॉट चेंज. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बेनिफिट ऑफ फ्रीजिंग इट, क्योंकि ट्रांसपोज में हमेशा अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाती है. तो अगर आपने किसी फॉर्मूला से लिंक किया, जस्ट डॉलर लगा दो. डॉलर लगाने के लिए यू हैव टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ स्मार्टनेस. उसको कॉलम वगैरह देख के आप डॉलर लगा दो and you can copy paste it to anywhere, any particular sheet. कोई problem नहीं आने वाली. I hope this was also clear. This was a question which was asked yesterday. मुझे अभी freezing से याद आया था. We are very short of time, so I don't think I'll be able to take the next thing. We'll be terminating the session. अगर किसी के कोई doubts है तो we'll be taking those, or else we'll be closing this 5-day interactive session on Excel. If there are any doubts, please let me know. Nikita, you have covered? Yeah, I've covered. Okay, and thank you for your wonderful presentation. And I think Jaya Krishna is here for final vote of thanks. In the meantime, all participants are satisfied with the great learning experience in the last 5 days. So really thankful to each one of you. And I request Jaya to say final vote of thanks. Jaya, are you there? Yes, sir. I think. Yes. So yes. Thank you, Nikita ji, for giving this so much informative session. For this was a 5 days
I mean truly learning session. और हमें इस सेशन में इतनी ज़्यादा नॉलेज मिली है, एंड एज अ प्रोफेशनल आई कैन से दैट कि यहाँ पे जितने भी जिन्होंने भी ये कोर्स अटेंड किया है, दे कुड अप्रिशिएट दिस दैट कि ये सेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वी जनरली इग्नोर कि एक्सेल हमारा कितना यूजफुल होता है, बट यूजिंग एक्सेल वी कैन एक्चुअली मिनिमाइज दी our unproductive time, and we can actually input that time into analysis, and for which PCS are generally acknowledged. So thank you for this session, and I would hope कि हमारे ऐसे sessions आगे भी आप लेते रहें and हमें knowledge provide करें. So it was really very nice to have you with us as Team CASA. Thank you. Thank you, Nikita. Thank you, sir. Jay. Thank you for this Thank you. opportunity. Thank you to बहुत all. अच्छा ही लगा. Thank you so much. Thank you. Definitely. I request admin to please close the session.